Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and any other MBA entrances. Well, here, this is the second video in the playlist of Allegation and Mixture. In case you missed the first video, I am giving you the I button. Please watch the first video because that is the video where we gave you an idea what exactly is the allegation mixture. It is nothing but a shortcut, and we also gave you an idea what kind of a shortcut it is. What is the scenario? Which is the scenario where we are going to use this particular shortcut? We also gave you an idea about the mechanism behind this shortcut, why this shortcut actually works. Because when you know these two basic things, it is easier for you to pick and choose the question where you can actually use the allegation and mixture shortcut. Fine? Then we also gave you an idea how exactly it can be used, what is the methodology, and we took some real CAT problem solving. So we actually took some questions, and those were the questions which were basic ones, easy ones, right? And now this is the video where we are going to solve the questions which are moderate level CAT questions. So ये जो questions है ना वो भी CAT में पूछे गए, अगले वाले भी CAT में पूछे गए थे, लेकिन हमने जो पूरे questions है एलिगेशन मिक्सचर के उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. जो इजी लेवल है, जो बेसिक एप्लीकेशन है, जो थोड़े टफ है और जो ज़्यादा डिफिकल्ट है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस कौन कौन से. ये CAT 2001 में पूछा गया था. आप इसको वीडियो पोज करके सॉल्व कर सकते हो, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट गिव इट अ ट्राई because that is where you think, and when you think you learn, right? It's not that because I'll be telling you, I'll be teaching you, you learn. It will be a compliment, right? So your learning is complemented by my instruction, my teaching, my methodology. But first of all, it's you who need to think. Fair enough? Right. So there's another one, CAT 2018 slot 2 question. This is also a moderate level question. First you're supposed to give it a try. And when you will have a look at our methodology, and then you will get the difference, like what kind of approach you should have to solve this kind of the questions. Alright, then देखिए ये question CAT 2019 slot 1 में पूछा गया था. वापस पोज करके आप सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे देखिए CAT 2018 slot 2. ठीक है. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने मिलेंगे. CAT 2020 slot 3 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने लास्ट 5 ईयर्स के ही लिए है. ठीक है. तो ये जो एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन है ये भी आपको सॉल्व करने हैं. और ये वाला, ठीक है, लास्ट वन CAT 2019 slot 2 का. देखिए हर साल ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस एवरेज एलिगेशन के आते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से. मतलब ये हर एक क्वेश्चन है ना 1-1 मिनट में सॉल्व होते हैं. एंड दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व इन CAT. क्योंकि ये आपका सिर्फ यहाँ पे मार्क्स देता है वो नहीं है, वो आपका टाइम बचाता है, जो टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हो. फाइन. तो ये सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मॉडरेट लेवल के हैं. एंड लेट मी प्रॉमिस यू, लेट मी एंश्योर यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन. सो वॉच टिल द एंड. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइन. ऑलराइट, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे ये रहा. देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन जैसे आप देखते हो, ठीक है, आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि 3 एवरेज दी है और फिर कुछ कंबाइन एवरेज भी दी है. तो एलिगेशन मिक्सचर तो यूज़ हो सकता है, क्योंकि एलिगेशन मिक्सचर के लिए चाहिए क्या, इंडिविजुअल एवरेज एंड कंबाइन एवरेज. तो यहाँ पे देखिए कंबाइन एवरेज कौन सी है, यहाँ पे एक्स एंड वाई की कंबाइन एवरेज है और एक्स और वाई की भी एवरेज दे दी चुकी है. सो ऑल वी नीड टू डू इज टू पिक अप दोज एवरेजेस. 83 एंड 76. ऑल राइट, 83 and 76 when they are mixed. Fine. X and Y, उस दोनों की combined average क्या है, उस दोनों की combined average is 79. So what does this mean? The difference of these two goes this side, the difference of these two goes this side. What is this ratio? What this ratio actually stands for? तो आपको खुद को पूछना है ना, ये जो एवरेज थी वो थी क्या, ये था एवरेज स्कोर ऑब्वियसली पर स्टूडेंट, है ना. Even though it is not written anywhere, it's implied average score per student. So what we are going to get is the ratio of students, whatever is after per, है ना, मैंने आपको सिखाया है. तो पर के बाद जो आता है भाई इसी का ये रेशियो होता है. तो ये स्टूडेंट्स का रेशियो हो गया. एक्स एंड वाई के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किस रेशियो में हो गए, 3:4 के रेशियो में हो गए.
ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3:4 के रेशियो में है। ऑलराइट, क्या दिया है दूसरा, y एंड z का एवरेज दिया है। तो क्या कर सकते हैं भाई, y की भी एवरेज दी है, z की भी एवरेज दी है, लिख देते हैं ना 76, 85, राइट। यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए 76, 85 y एंड z, यहाँ पे भी आपके लिए लिख देता हूँ y एंड z की एवरेज और y एंड z की कंबाइन एवरेज को हम लिख देते हैं। बीच में कितनी है भाई, 81 है ना, कोई बात नहीं भी, जैसे ये लिखा क्या पता चला, डिफरेंस गोज टू द अदर साइड, राइट, द बेसिक मेथडोलॉजी 4:5। ये क्या रेशियो आया वापस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन y एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन z आर इन द रेशियो 4:5, है ना। तो कर लेते भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन y एंड z आर, यहाँ तो 4 ही था, देखिए अगर अलग रेशियो होता तो मैं बाजू में करके दो को कंबाइन करता, लेकिन ये तो उसी रेशियो में 4:5। सो ओवरऑल रेशियो क्या आ गया, 3:4:5, है ना। आपको समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड की एवरेज दी है और उसका जो वेटेड है वो 3, 4, 5 आ गया। अब आपको चाहिए वेटेड एवरेज। देखिए एलिगेशन मिक्सचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एवरेज। अगर आपको एवरेज नहीं आता, एलिगेशन मिक्सचर नहीं सीख सकते। सो दिस इज नॉट अ टॉपिक विच यू कैन लर्न इन आइसोलेशन, है ना। इसका बेसिक वहां पे एवरेज में छुपा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आई बटन दे देता हूं, अगर एवरेज में कुछ भी दिक्कत है तो पहले वो पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज द टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। Fine. So it's very important to know the first step before you move on to the second one. Otherwise, simply you will fall, right? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कुछ नहीं करना, और उसमें भी अगर हमारा शॉर्टकट पता है ना टाइम का, तो कुछ भी तो नहीं करना। क्या करना था, हमने आपको बोला था कि बीच वाली जो भी एवरेज हो ना उसको आप अज्यूम्ड एवरेज कर लीजिए। चलिए 83 अगर आपकी अज्यूम्ड एवरेज है तो इधर तो कोई डेविएशन नहीं है, 0 डेविएशन। इधर आप -7 हो ऐसा 4 बार तो -28 हो, इधर आप +2 हो ऐसा 5 बार तो +10 हो। ओवरऑल क्या हुआ, डेविएशंस कितने हैं, -18। सो ऑल यू नीड टू डू इज -18 को डिवाइड कर दीजिए टोटल वेटेज से, 5, 4, 9, 3, 12, सो दैट इज 1.5। 18/12 is 1.5. 83 minus 1.5, there you go, 81.5. Are you getting the shortcut? तो यही तो चीज़ है ना। अगर आपने वो वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, हर एक चीज़ शॉर्टकट से बनती है और वही तो टाइम का मेन फीचर है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही कराऊं कि 83 इंटू 3 कर लीजिए प्लस 76 इंटू 4 कर लीजिए प्लस 85 इंटू 5 कर लीजिए डिवाइड बाय 3 + 4 + 5। ये तो कोई भी पढ़ाएगा, समझ में आ रहा है, ये तो कोई भी पढ़ाएगा, आप कहीं से भी सीख लोगे। तो आप उसके लिए यहाँ पे नहीं हो, और इसका पूरा का पूरा मैंने लॉजिक समझा है, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो शॉर्टकट ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफिशिएंसी इज द की टू कैट एग्जाम, है ना, टू क्रैक द कैट एग्जाम, सॉरी। आर यू गेटिंग दिस, फाइन। तो अगर आपको ये 3, 4, 5 तो आपके वेटेजेस है, इसमें से कोई भी बीच वाला नंबर आप ले सकते हो, आपका कोई भी एक अज्यूम्ड एवरेज से 83 ले लिया था मैंने, तो फिर वहां से सिर्फ मुझे डेविएशंस देखने थे, अज्यूम्ड एवरेज और उसका डेविएशन। तो क्या छोटे छोटे एग्जाम्पल, मतलब मल्टीप्लिकेशन छोटे हो गए, रादर देन 76 इंटू 4 हमें करना पड़ा -7 इंटू 4, सिंपल हो गया। यहाँ पे करना पड़ा +2 इंटू 5 +10, है ना। तो आपके डेविएशंस का टोटल आ गया -18 डिवाइड बाय टोटल वेटेज, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। और देखिए अभी के लिए तो मैंने पूरा आपको सिखाया, बाकी एग्जाम में आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अच्छे हो ना, अच्छी तरह प्रैक्टिस किए, हमारे वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़े हो, तो आप इतना ही करोगे। अच्छा x एंड y 79, इस दोनों का तो फिर 79 हो गया, तो इस दोनों का गैप कितना हो गया 4, इस दोनों का गैप 3, इधर डाल देते हैं। अच्छा ये 81, इस दोनों का गैप 4, वो तो इधर है ही, इस दोनों का गैप 5 इधर हो गया। सो 3, 4, 5 आ गए। फिर आप देखोगे ठीक है यार 83 को अज्यूम कर लेते हैं, एंड देन ये तो कोई डेविएशन है नहीं, -7 -4 -28 एंड +2 इंटू 5 +10, सो -18 बाय 12 -1.5, सो 83 -1.5 इज 81.5। शुडंट टेक मोर देन अ मिनट, 1 मिनट का काम था, और इसीलिए हम इस पे पूरा वर्क कर रहे हैं कि आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगेन आप पोस्ट करके खुद तो ट्राई कर ही सकते हो। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, देखिए मैंने आई बटन दे दिया था, है ना, शुरू में ही, वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है आपका एलिगेशन मिक्सचर का बेसिक क्लियर नहीं है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर सकते, फाइन।
यहाँ पे देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जो पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी है, तो या तो तीनों को पेंट एक से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे मिक्सचर को, या तो पेंट बी से। हमारी एवरेज होनी चाहिए, तो पेंट बी नॉर्मली छोटा है तो पेंट बी ले लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ 7/25 है ना। जो 2 ड्रम है उसमें पहले में देखिए जो ड्रम 1 है उसमें आपका बी कितना है 7/25, तो ऑन एन एवरेज पहले ड्रम में बी है 7/25, ये है ड्रम 1, ठीक है। ऑन एन एवरेज ड्रम 2 में देखना यहाँ पे, ड्रम 2 कहाँ गया, हाँ ये रहा, ड्रम 2 नहीं दिया। देखिए ड्रम 2 में क्या है, वो नहीं दिया, सीधा बोला ये दोनों मिक्सचर को मिलाया जाता है ना। तो ड्रम 2 में कितना है हमें नहीं दिया, ठीक है। ड्रम 2 का ये मिसिंग है कि उसमें कितना पेंट बी है, पर हमें ये दे दिया है ना, इस बार रेशियो दे दिया है कि उस दोनों को 3:4 के रेशियो में मिलाया जाता है। मतलब कि इसके अगर आप 3 पार्ट्स लेते हो तो इसके 4 पार्ट्स लिए जाते हैं, है ना। और फाइनली आपका ये मिक्सचर बन रहा है, यानी फाइनली एवरेज क्या बन रहा है पेंट बी का 7/20, है ना। तो अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शंस होते हैं नीचे का बेस सेम बना लेते हैं ना, आउट ऑफ 100 कर लेते हैं, क्योंकि 25 और 20 का एलसीएम 100 होता है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे समझना कि पेंट बी आउट ऑफ 100 इंटू 4 है ना 28 आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28 आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक में आउट ऑफ 100 माना जाएगा, तो परसेंटेज में ले लिया है ना। ये 20 इंटू 5 तो 7 इंटू 5 35। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा जब इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं 3:4 के रेशियो में, ये फाइनली बन रहा है। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? एलिगेशन मिक्सचर क्या है, हम यहाँ पे 3 जगह पे एवरेज डालते हैं। अब यहाँ पे हमने एवरेज के लिए क्या डिसाइड किया, एवरेज क्वांटिटी ऑफ बी, ठीक है, पेंट बी इन द मिक्सचर, फाइन, एवरेज क्वांटिटी ऑफ पेंट बी इन द मिक्सचर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 18:7 है, तो बी कितना है 7/25, यहाँ पे बी कितना है फाइनली 7/20, और जो मिक्स कर रहे हैं वो रेशियो भी दिया है ना। तो उसको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, फिर सीधा ये आना चाहिए। बाद में देखिए कुछ भी नहीं है। 28 और 35 का डिफरेंस कितना है, समझ में आ रहा है, रियल डिफरेंस जो है 28 और 35 का डिफरेंस 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो। तो एक्चुअल तो ये 7 है, समझ में आ रहा है ना, ये 7 है, फाइन। तो जो 4 पार्ट अगर 7 है तो 3 पार्ट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये तो वही रेशियो में आता है, इसी रेशियो में ये डिफरेंस आता है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है, 4 पार्ट अगर 7 है तो 3 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, 4 पार्ट 7 है तो 3 कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है 21/4। 21/4 क्या होता है 5.25। तो इसका मतलब हुआ ये 5.25 जो है वो तो, सॉरी, ये 5.25 जो आया वो समझना इस दोनों का डिफरेंस हमने सामने डाला था, इस तरह इस दोनों का डिफरेंस 5.25 आना चाहिए ना। आर यू गेटिंग दिस? जैसे इस दोनों का डिफरेंस सामने डलता है, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ डलता है ना। तो ये 5.25 है, वो तो इस दोनों का डिफरेंस है, और ये हमेशा बीच में होता है, इससे ज़्यादा है तो इससे कम होगा, है ना। तो ये 5.25 जो आया वो आप समझना, 5.25 जो है वो क्या है, इस दोनों का डिफरेंस है। तो 35 + 5.25 इज 40.25। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ एकदम शांति से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टफ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ करके चला जाऊँ, है ना, पूरा समझाना है, आपके दिमाग में उतारना है। लेकिन अगर आपका एक बार मैथ्स अच्छा है, आपका माइंड अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर कितना फास्ट होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए आर यू गेटिंग दिस, है ना। देखिए हमें क्या पता था, जब भी मैंने आपको बोला था पहले वीडियो में कि भाई 4 चीज़ होती है, इंडिविजुअल एवरेज दोनों की, एक कंबाइन एवरेज 3 वो, और एक रेशियो 4 में से 3 चीज़ दिए, एक मिसिंग है, तो आप एलिगेशन मिक्सचर फटाफट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वही है, ये वाला मिसिंग है, ये 1, 2 और रेशियो 3 चीज़ तो दी है ना। सो आपको क्या करना है, वापस समझाता हूँ। ये फ्रैक्शंस थे, पहले तो हमने उसको अपॉन 100 सब में कर दिया। सो ये 35/100 है, ये 28/100 है, एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। और अपॉन 100 कॉमन है, तो फिर अब लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब ये रेशियो भी है। अब हम क्या करते हैं समझो, इस दोनों का डिफरेंस सामने की तरफ जाता है, तो इस दोनों का डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो कि क्या है भाई 7 है, तो ये जो 4 पार्ट है वो अगर 7 है तो ये 3 पार्ट होना कितना चाहिए, 4 पार्ट्स अगर 7 है तो 3 पार्ट कितना होना चाहिए। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 5.25। ये 5.25 क्या है, एक्चुअली इस दोनों का डिफरेंस इधर जाता है ना।
तो इस दोनों का डिफरेंस अगर 5.25 है तो 35 प्लस 5.25 ये 40.25 है। और ये एक्चुअली है क्या, ये 40.25 आउट ऑफ 100 है ना, हमने सब में आउट ऑफ 100 लगा के रखा है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज पेंट बी, राइट, ये पेंट बी हमने लिया था एवरेज के दौर पे तीनों जगह पे। व्हाट वी टुक इज एवरेज ऑफ पेंट बी इन द मिक्सचर। सो इन द सेकेंड ड्रम पेंट बी जो है वो 40.25 आउट ऑफ 100 है। सो अगर वो 40.25 आउट ऑफ 100 है तो ए कितना होगा, ये बी है ना, तो पेंट ए कितना होगा, टोटल 100 है, 100 में से माइनस कर दीजिए 59.75 है ना। तो ये रेशियो होना चाहिए, और ये रेशियो ऐसे तो नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको इंटू फोर कर दो, है ना, वो दिखना चाहिए भाई, थोड़ा बेसिक मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए ना, स्पीड मैथ्स, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, पॉइंट में तो नहीं चाहिए। इंटू 4 करने से ऑब्वियसली ये 40 × 4 161 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 × 240 में से एक कम 239 है ना। सो ये सब आपको आना चाहिए, तो 239 161 ये रहा। ऑलराइट, देखिए पूरा समझाता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं, ये तो आपको पूरा समझा, मैं अभी आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इसको कैसे करोगे। एक बार ये क्वेश्चन देखोगे, 5-7 सेकंड जाएंगे, बट देन आप सीधा करोगे, अच्छा ये 7/25 इधर लिखता हूँ, इधर कौन सा है नहीं पता, दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइनली इट इज 7/20 एंड देन यू विल रियलाइज आउट ऑफ 100 कर लेते 20-25, ये हो जाएगा 28, ये कितना नहीं पता, बट अल्टीमेटली इट इज 35, 3:4, then you will say okay this part is 7, 4 is 7, 3 is how much, 21/4 is 5.25. So if this is more than that it has to be lesser than the other one, so this plus this becomes 40.25. so ये अगर 40.25 है, ये तो पेंट बी लिया था हमने, टोटल 100 लिया है, तो ये 59.75, और थोड़ा स्पीड मैथ अच्छा हो तो आप समझ सकते हो, इंटू 4 कर दो, इंटीजर आ जाता है ना, 0.25 इंटू 4 से भी चलेगा, 0.75 इंटू 4 से भी चलेगा, है ना, तो इंटीजर आ जाता है, एंड देयर यू गो, दैट्स योर आंसर। इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट। ओवरऑल आपका वो लेवल होना चाहिए, और वही हम प्रैक्टिस कराते हैं भी टाइम पे, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं ना, क्योंकि पहले स्पीड मैथ होता है ना, देखिए पहले स्पीड मैथ होता है, फिर रेशियो होता है, फिर परसेंटेज होता है, फिर एवरेज होता है, फिर एलिगेशन मिक्सचर होता है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो पूरी चीज़ आपके दिमाग में होती है कि कहाँ से कहाँ फटाफट भागना है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ ना भाई कि एक बार ज्वाइन कर लीजिए फुल प्रेप, है ना, पूरी प्रिपरेशन सिंसियरली कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थोड़े मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, बिकॉज ये कैट है भाई, है ना, तो मेहनत तो करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन देखता हूँ ना, मुझे ये दिखना चाहिए कि अच्छा भाई एक इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे किया है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो कॉम्बिनेशन में है इस रेशियो में और इतने इतने परसेंट पे, वेटेड एवरेज आपको आना चाहिए। देखिए आगे के कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो नया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे आई बटन दिया था एवरेज का, देख लीजिए। यहाँ पे है ना, आपको जैसे ये देखते हो पता चल जाना चाहिए कि 4% को 2 का वेटेज दीजिए 8, प्लस 3% को 1 का, 3 × 1 इज 3, डिवाइड बाय टोटल वेटेज 3, यानी 11/3% का रिटर्न मिल रहा है मुझे। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट मैंने इन्वेस्ट किया ना, वहाँ पे मुझे 11/3% मिलेगा, ये पता चलना चाहिए, ठीक है। और पहला वीडियो भी एलिगेशन मिक्सचर का देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये एलिगेशन मिक्सचर से हो सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए हैं, और उसका भी मैंने आई बटन दिया है पहले, है ना। तो ये सब देखिए, बहुत ज़रूरी है। So if you really understand that, all you need to understand is now that 15 lakh 6%. So according to fixed deposit, your return is going to be 6% of 15 lakh, that is 90,000, right? उसको एक तरफ लिख लेते हैं कि अच्छा 90,000 तो यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन अगर यही मैंने पूरे के पूरा जो दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट है वहाँ डाला होता तो 11/3%, अब 15 लाख का 11/3% कितना होगा, 3 यहाँ पे काट लीजिए, 5 लाख का 11% 55,000, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए था, 55,000। समझ में आ रहा है। फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से ये अदर इन्वेस्टमेंट जो पार्ट 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ये रिटर्न मिलना चाहिए। आपको मिला कितना है, आपको तो इनकम 76,000 की हुई है, तो वो डाल दीजिए बीच में,
है ना। और आपको पता है कि भाई हमें तो रेशियो से मतलब है, ये 3-3-0 तीनों में काट लीजिए ना। डिफरेंस इस दोनों का 21, इस दोनों का 14, 3:2, देयर यू गो, 7 3 7 2 है ना, 3:2। ये रेशियो किसका आया? नाउ आस्क योरसेल्फ व्हाट यू रॉट। ये 90,000 क्या था? ये 90,000 था कि अगर 6% पर एनम यानी कि फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से गिनने जाए, है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसका फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से जो एवरेज निकलता है वो ये था। तो ये फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से, ये दूसरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ दिया है 15 लाख। तो आपको आता है 15 लाख जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3:2 के रेशियो में बांट दे तो 9 लाख एंड 6 लाख। और हमें पूछा क्या है भाई? हमें पूछा है फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन लाख। इन लाख है तो आपको लिखना क्या है आंसर? सिर्फ 9 लिखना है। आंसर क्या लिखना है? 9। इट्स 9 लाख। 9 लाख नहीं लिखना है, समझना, जस्ट 9 लिखना है, बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज देन द अमाउंट इन रुपीज लाख। सो इफ यू आर राइटिंग 9 दैट मीन्स इट इज 9 लाख। फाइन। सो 9 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। और कुछ भी नहीं था भाई, 1 मिनट तो मोर देन इनफ है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फाइन। चलिए ये वाला क्वेश्चन आई होप यू पोज करके आप इजीली कर दोगे। देखिए है कुछ भी नहीं, अगर आप समझो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। क्या बोला है देखिए, एक 20% इथेनॉल सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है जो कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें भी इथेनॉल है पर हमें पता नहीं कितना है। तो जो मिक्स कर रहे हैं दोनों को आजू बाजू लिख देते हैं ना, 20%, ठीक है, एंड दूसरा अननोन है, दोनों को मिक्स किया, ठीक है। अब मिक्स किस रेशियो में किया है? 1/3, यानी रेशियो तो हमें पता है 1:3, ओके। लेकिन जब तक ये नहीं पता नहीं चलेगा कि मिक्स होके कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला आपको मिक्सचर मिला, नहीं पता चलेगा। लेकिन आगे क्या किया है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ इस मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, यानी कि जो ये मिक्सचर है इसको वापस हम मिक्स करते हैं 20% इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ। और किस रेशियो में? क्योंकि इक्वल बोला है ना, इक्वल का मतलब हो जाएगा 1:1। और फाइनली क्या मिलता है मिक्स करने के बाद? ये मिल रहा है 31.25%। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये डिज़ाइन दिखती है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, एंड देन इट इज़ प्रीटी ईजी। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें दिखती है आप देखोगे अच्छा, क्योंकि ये 1:1 है, इस दोनों का डिफरेंस जितना होगा उतना ही इस दोनों का डिफरेंस होगा, और ये हमेशा बीच में होता है, यानी ये सबसे हाईएस्ट होगा। इस दोनों का डिफरेंस 11.25, इसमें ऐड कर दीजिए 42.5, है ना। तो 42.5 आपका आ गया ये मिक्सचर, तो ही तो इस दोनों के बीच में ये आएगा, है ना। अब ये 42.5 आया, फिर सीधी सी बात, ये तो हमें पता है इस दोनों का डिफरेंस सामने जाता है ना 22.5, तो 3 पार्ट्स अगर 22.5 है, 1 पार्ट कितना? थोड़ा मैथ्स अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ ही सकता है, बट थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है तो 7.5। तो ये क्या है? इस दोनों का डिफरेंस 7.5 होना चाहिए, है ना। अब इस दोनों का डिफरेंस ये ज़्यादा होगा कम होगा? क्योंकि ये वाला मिडल में होता है, ये कम वाली वैल्यू, ये ज़्यादा वाली वैल्यू होगी। 42.5 प्लस 7.5, 50 आपका आंसर है ना। देखिए आप पीछे जाके रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, बट बहुत ही सिंपल है ना। एलिगेशन मिक्सचर, देखिए अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो आपने आगे का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, मैंने इसीलिए बोला एवरेज क्लियर होना चाहिए, एलिगेशन मिक्सचर का फर्स्ट पार्ट क्लियर होना चाहिए। और हम यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेप बाय स्टेप इवन यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे है ना, क्योंकि आप सिंसियर हो, अगर आप में थोड़ा भी दम है तो आप निकाल दोगे, है ना। पर लगता है कि नहीं सर हमें और भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आइए ना, देखिए हमारे सेंटर से हमने बोला है ना। आप BT 1000 कोड भी यूज़ कर सकते हो, 1000 डिस्काउंट भी रियल टाइम डिस्काउंट मिलेगा, और कोई भी स्कीम होगी ओवर एंड अबव दैट, है ना। तो अगर सिंसियर हो तो वो भी कर लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे समझ में आता है तो गुड इनफ, है ना। कुछ भी नहीं है, आपके लिए ही हम यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। वी वॉन्ट अवर स्टूडेंट्स टू गेट इन टू IIMs एंड बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं था भाई, क्योंकि 1:1। तो देखिए आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऑल यू नीड टू डू, आप कितना करोगे, आप कितना टाइम लोगे, देखिए यहाँ पे ही मैं करवा देता हूँ।
आप फ्रेंकली अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की ना तो आप सीधा ये देखोगे, अच्छा 20 अनदर, ठीक है 20 क्वेश्चन मार्क मिक्स हो रहा है, 1:3 नहीं पता, पर इसके साथ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है 1:1 20%, फाइनल 31.25। फिर आप सीधा देखोगे, अच्छा 11.25 इसमें ऐड कर दो, 42.5, इस दोनों का डिफरेंस 22.5 यहाँ पे, सो 1/3 ऑफ दैट इज 7.5, 42.5 प्लस 7.5 इज 50, देयर यू गो। 1 मिनट भी मोर देन इनफ है, और इस लेवल तक हम आपको लेके जाना चाहते हैं, और इस लेवल तक हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। हाँ, वो हार्ड वर्क करना ना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये टीचिंग है। टीचिंग हम कितना भी कर ले, आपको खुद को अगर करना है, आप खुद को कॉन्सेंट्रेट करना है, मेहनत करनी है ना। सो कुछ भी नहीं था। आर यू गेटिंग दिस, है ना। और इसी तरह से हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते। देखिए दूसरा क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, पोज कर लीजिए, इसका आंसर प्लीज़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, और देखिए एक्चुअली कैट 2018 का क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया गया था कैट 2020 में, है ना। सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, पूरे का पूरा फंडा सेम है। देखिए क्या करना है, वापस ए और बी को मिक्स करते हैं इसी रेशियो में। देखिए रेशियो भी सेम है 1:3, ओके। बाद में अब हमें नहीं पता ए कितना है बी कितना है, लेकिन लास्ट में बोला है ए 60% अल्कोहल और बी वही तो हमें ढूंढना है, तो वापस वही हो गया 60 और एक अननोन को मिला देते हैं 1:3 के रेशियो में, वापस वही तो हो गया 60 एंड एक अननोन को मिला देते 1:3 के रेशियो में। क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन बाद में बोला है द मिक्सचर इज देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन है। अब डबल करने का मतलब क्या है, जितना है उतना और डालना, तो वापस 1:1। तो कुछ भी फर्क ही नहीं है क्वेश्चन में, ये जितना मिक्सचर है उतना ही और डालते हैं, तो ये तो डबल होगा, 1 का 2 हो जाएगा टोटल। अब ये कितना है ये हमें दिया होगा, है ना, क्योंकि ए ही डाला है तो 60%। अब ये तो हमें पता नहीं था, पर जब इस दोनों को मिक्स किया क्या बोला है, फाइनल आपका मिल गया 72% अल्कोहल वाला सोल्यूशन, तो यहाँ पे 72 है। तो देखिए डिज़ाइन पूरी की पूरी सेम है, इवन रेशियो भी सेम है, कुछ भी मेहनत नहीं की है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे हर एक वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस कराते हैं। फाइन, है ना। तो देखिए हो चुका भाई, इस दोनों का जितना डिफरेंस है उतना ही इस दोनों का डिफरेंस है, 60 + 12 72 + 12 84। इस दोनों का डिफरेंस 24 इस तरफ, अगर 3 पार्ट 24 है तो 1 पार्ट 8 है, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस 8 है। 84 + 8 92, देयर यू गो। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, है ना। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा तो फटाक से आंसर आ जाएगा। और मोर देन एनीथिंग एल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो सेम क्वेश्चन नहीं भी किया होगा ना, आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा इसी तरह करना है, और उसी पे तो हम वर्क करते हैं आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए। ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, वो कब यूज़ होता है अगर पता चले ना तो क्वेश्चंस यूँ निकलेंगे, कोई भी नई पैटर्न आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए टोटली नई पैटर्न है, अलग ही क्वेश्चन है जो कैट 19 में पूछा गया था, है ना। पर वो अंडरस्टैंडिंग अगर है तो पता चलेगा कि अच्छा एलिगेशन मिक्सचर यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है ना, बाकी कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 30 इंटीजर्स की एवरेज 5 है, जिसमें से 20 5 से एग्जैक्टली 20, ये देखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 20 का क्या मतलब होता है कि अदर्स डू। जब मैं बोलता हूँ देयर आर एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स इन विच आई डिड नॉट गेट 80 मार्क्स, दैट मीन्स इन अदर एग्जाम्स इन अदर पेपर्स आई गोट एग्जैक्टली 80 मार्क्स। आर यू गेटिंग दिस। तो एग्जैक्टली का मतलब है और कोई नहीं, तो एग्जैक्टली 20 नंबर है जो 5 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब बाकी के नंबर्स है ना। तो कुछ नहीं समझना, देखिए 30 टोटल नंबर्स है और वो भी इंटीजर्स है, 30 में से 20 5 से कम है, यानी बाकी के 10 5 से ज़्यादा है, तो ये 2 नंबर्स हुए ना 20 एंड 10, टोटल 30 नंबर्स है। एवरेज हमें तो बीच में लिखना है ना, ये तो रेशियो हो गया, इन विच रेशियो दे आर गेटिंग मिक्स्ड 20 एंड 10, 5 उसकी एवरेज है, 30 टोटल नंबर्स है ना। अब देखिए इस रेशियो में मिक्स हो रहा है, ये फाइनल एवरेज है और ये एक्सीड करते हैं 5 से, और
हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 नंबर्स, ये एवरेज का हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब इसको अगर हाईएस्ट बनाना है तो समझ में आना चाहिए इसको लोवेस्ट बनाना पड़ेगा, और इसीलिए बोल रहा हूं एवरेज बेसिक है। अगर एवरेज नहीं पता तो एलिगेशन मिक्सचर कैन नॉट बी लर्नड इन आइसोलेशन। मैंने आई बटन्स दिए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है ना, पहला स्टेप अच्छा नहीं है तो दूसरे स्टेप में चढ़ने जाओगे गिरोगे, है ना। तो पहला वो ठीक करो, और उसी के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे, आगे के आई बटन्स दे रहे हैं। एफर्ट आपको लेना है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। वो देखिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपको पता चल सकता है तो ये तो लोवेस्ट लेना है, लेकिन ये नंबर्स कौन से 10 विच एक्सीड 5, तो 5 से ज़्यादा भी लेने हैं लेकिन लोवेस्ट लेने हैं। कितना ले सकते हैं, वैसे तो मैं 5.00000001 ले लूँ या उससे भी छोटा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर्स है ना, तो 5 से बड़ा छोटे से छोटा इंटीजर 6। तो ये पहले तो एक लॉजिक था जो आपको पता चलना चाहिए, 6 लेना है। एंड वंस यू नो दिस, आपके पास 1, 2, 3 और 4 चीज़ में से 3 चीज़ है, ये है और एक रेशियो है, तो ये तो मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, इस तरह से, इस दोनों का डिफरेंस 1। अगर ये 21 के लिए रिप्रेजेंट करता है, 21 है तो 10 कितना 0.5, यानी कि इस दोनों का गैप 0.5 है। और ये 5 प्लस 0.5 या 5 माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला था, बड़ा नंबर था, तो ये कम होगा। सो 5 माइनस 0.5 इज 4.5। तो वापस 1 मिनट का काम है ना। All you need to understand is what is average, what is alligation and mixture, what does that actually do, है ना। अगर हमारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखे हैं, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, कुछ भी नहीं है, फाइन। तो आपका लॉजिक इस तरह से चलेगा, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और हमारा पूरा एफर्ट ये कि भाई हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, बैच स्टूडेंट्स, इवन यूट्यूब स्टूडेंट्स, है ना, जो कि हमारे स्टूडेंट्स है भी नहीं, एनरोल भी नहीं किए, लेकिन वो रिजल्ट लाए और वो हमें ये बताए कि सर यू मेड डिफरेंस इन आवर लाइव्स, यू वर द डिफरेंस बिटवीन वी एंड कैट रिजल्ट। व्हेन इट इज हैपनिंग, दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर, एंड दैट वुड बी द बेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर अ टीचर्स प्रोफेशन, राइट, फाइन। तो हम उसी के लिए काम करते भाई। आप लाइए रिजल्ट, कमेंट बॉक्स में डालिए कितना हेल्प मिल रहा है हमारे से। फिर देखिए, जितनी आप कमेंट डालते हो उतना यूट्यूब को लगता है कि हमारे वीडियोस वैल्यूएबल है, मोर इंटरेस्टिंग है, एंड इट वुड रेकमेंड टू अदर यूजर्स एज वेल। तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, आप भी थोड़ा कमेंट डालिए, है ना। आपको कितना सीखने को मिल रहा है पूरा हमें बताइए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, शेयर कीजिए, है ना, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, जिससे नए के नए वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। फाइन, ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। और आपको अगर डिफिकल्ट लेवल कैट क्वेश्चंस का भी पूरा वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे उसका भी आई बटन दे देता हूँ, देख लीजिए। अगर अभी तक आप कंफर्टेबल है तो आगे का वीडियो भी आपको बहुत सारा सिखा के जाएगा, ठीक है, फाइन, ऑलराइट देन। देखिए, और अगर आप रियल में बहुत सिंसियर है, पूरा कैट का प्रिपरेशन करना है, तो हमारे टाइम गुजरात के 3 सेंटर से वहाँ पे जाइए, आप खुद को एनरोल कराइए। बहुत अलग अलग कोर्सेज है, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, BT1000, इस कोड को यूज कीजिए, ये आपको रियल डिस्काउंट देता है, एंड इट कैन बी क्लब्ड विथ एनी अदर डिस्काउंट। और कोई भी डिस्काउंट चल रहा है ना, उसके ऑन एंड अबव दैट ये एक्स्ट्रा 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये उसका आपको स्पेशल डिस्काउंट है 1000 रुपीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट बता दीजिए या तो ये कोड बता दीजिए, आपको ये डिस्काउंट उधर मिलेगा। हमारे जो सेंटर्स है यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा हेड ऑफिस है अहमदाबाद का, एक और है अहमदाबाद में, और एक गुजरात का भी सेंटर है। तो वहाँ पे जाइए, एनरोल करा दीजिए। अगर आप रियल में सिंसियर हो तो इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दीजिए, ठीक है। एंड आई कैन एंश्योर यू, if you want to prepare for CAT, you cannot get better than this। ये हम आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऑलराइट देन, देखिए यहाँ पे हमारे बैच टाइमिंग्स भी, अगर आप वीकडेज में आना चाहते हो तो ये 3 स्लॉट्स है। जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल है, आपके कॉलेज के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से, आप चूज एंड पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, नॉर्मल वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा वीकेंड बैच भी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सैटरडे संडे आना है ना, और ये भी आप अटेंड कर सकते हो।
और या तो आप ऐसे हो जो अहमदाबाद गांधीनगर से बहुत दूर रहते हो तो यू कैन कम फॉर अवर ऑनलाइन बैचेज एज वेल। ठीक है, ये वीकडे ही रहते हैं लेकिन लेट नाइट, जैसे आप देख रहे हो रात को 9:30 से 11:30, तो पूरा लेट नाइट चलता है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, आप शांति से रिलैक्स हो के आप पढ़ सकते हो। फाइन, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। सो यस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।